నిజాం అంటే చాలా మందికి వ్యతిరేక అభిప్రాయమే ఉంటుంది. ఇది తప్పంటున్నారు సీఎం కేసీఆర్. దీనిపైనే అసెంబ్లీలో తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారాయన. నిజాం సాగర్ డ్యాం కట్టించి, ఆసుపత్రులను నిర్మించి, దేశం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు 6 టన్నుల బంగారం ఇచ్చి ఆదుకున్న వారిని వ్యతిరేక భావంతో చూడటం సరికాదన్నది ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయం. మంచిని మంచిగా చూడాలి, చెడును చెడుగా చూడాలని చెప్పారాయన. నిజాం చరిత్రను సమైక్య పాలనలో వక్రీకరించారని, ఇప్పుడు దాన్ని తిరిగి రాయాల్సిన బాధ్యత తనపై ఉందని ప్రకటించారు సీఎం కేసీఆర్. ఎందుకు చేసినారో తెలియదు. సమైక్య పాలకులు ఒక దుర్మార్గమైన ప్రచారాన్ని పెట్టినారు. నేను దాన్ని ఖండిస్తా ఉన్నాను. అది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. నిజాం మన తెలంగాణ చరిత్ర. మరి ఆయన నిర్మించిన నిజాం సాగర్ సంగతి ఏంది? దాన్ని ఒప్పుకోవద్దా? అది నిజం కాదా? ఈ రోజు కూడా వాడుకుంటున్నాం కదా అధ్యక్ష నిజాం సాగర్. కాబట్టి ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి. 6 టన్నుల బంగారం ఈ దేశం రక్షించడం కోసం ఆయన సొంత ఆస్తిని ఇవ్వడం జరిగింది. నీకు తిరిగి ఇస్తాను ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తే నాకు అవసరం లేదు. ఆ పైలే దేశకో సంభాలో దేశకో బచావ్ అని చెప్పినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మన నిజాం రాజు అధ్యక్ష. ఈ కొత్త చరిత్ర రాపిస్తాం డెఫినెట్గా. తెలంగాణ యొక్క నిజమైన చరిత్ర ఏందో దాన్ని రాపించి ప్రజలకు ముందు తరాలకు అందుబాటులోకి తెస్తాం. ఇంతకీ నిజాం పాలనలో జరిగిన మంచి ఎంత, చెడెంత అన్నదే ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. During the Indo-China war, the late Nizam had donated 2 lorry loads of gold coin to the Indian government in 1962. Now what? Now a question will be asked. It was not his money. Sir, this was his private money. Private money. When the government of India said that this money, these assets will be taken by the government and this is your assets. From his personal assets, he gave 2 loads of lorries of gold coin and 9 crores of national defense bond he purchased to fight against the China. That is why I say that I am proud of this Nizam. Sir, and also sir, let me come on record. Let me come on record and say that, sir, for Banaras, for my learned BJP legislature, sir, for the Banaras, on the request of Madan Lal Mohan Malviya, he sanctioned rupees 10 lakhs for Banaras Hindu University, sir. 10 lakhs. Sir Syed Ahmad Khan too requested funds for Aligarh. Then he gave 5 lakhs. Then, Sir Syed of Aligarh University asked Nizam, you are a Muslim ruler, you give 5 lakhs to Muslim University and you gave 10 lakhs to Hindu Banaras University. The reply was what you know, sir? Nizam said, the majority of this countrymen are Hindu. Their population is more than Muslims. That is why I gave them 10 lakhs rupees. This is the secularism of Nizam. And also, sir, if anybody is raising the voice for against, sir, I would like to say, Mr. Ramlu, sir, for your information, I don't know whether you know or not, kindly just bear with me for a minute, sir. Sir, I would like to bring notice, sir, for you, sir. Nasimlu Saab, sir. Sir, it was Mr. Usman Ali Khan who allotted 54 acres of land to Dr. B.R. Ambedkar, where the later established Milan Education Society. Bola Saab. For Dalits also is given. That is why I say that he was a secular leader, secular ruler. What has happened has happened. And then, sir, if I have to go on the glance, sir, a glance on Andhra Pradesh archives reveal that Nizam donated 82,825 for Yadri Gutta temple, rupees 5,000 for Sri Rambagh temple, 50,000 for Bhadrachalam temple and 80,000 for Sri Balaji Tirupati temple. And then people say, and I would also like to say, sir, he supported the Telugu Academy for bringing out a book on ancient Hindu buildings of Hyderabad by giving 50,000 rupees. And then, what anti-national?
What anti-national? What anti-national? And sir, and the prominent Hindus who were there in the Nizam, sir, Maharaja Krishan Prasad, Sarojini Devi, Raja Lal Deen Dayal, Diwan Bahadur, and many others, sir. So we should not say that. गाँव के लिए अच्छा है, सबके गाँव के लिए अच्छा है। पहले आप निकालो, बंडी संजय एक कम्युनल और एक हेट मॉन्गर लीडर नहीं बोलेंगे, उसको गुंडा बोलेंगे। एक हेट मॉन्गर लीडर गून जो कि पीस और हारमोनी को डिस्टर्ब करता है कंट्री के, हमेशा डिवाइड एंड रूल या हिंदू मुस्लिम करके। कल हैदराबाद बोधन में एक जगह है निज़ाम चौक, रेजोल्यूशन पास होने के बाद में उस जगह का नाम निज़ाम चौक रखा गया। उसको लेकर बीजेपी के कुछ लोगों के साथ में मिलकर राइट जैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। सुना होगा आपने कि निज़ाम जो है किस टाइप का आदमी था, एक सेक्युलर आदमी था। सीएम केसीआर खुद उसकी तारीफ़ कर रहा है निज़ाम की, और बीजेपी का ये हेट मॉन्गर बंडी संजय ये लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है। ये बीजेपी का काम है। अब बीजेपी को मालूम है अगर ईवीएम हट जाएगा, बैलेट बॉक्स आ जाएगा, तो फिर इनका पत्ता गुल हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि लोगों को इंस्टिगेट करें। जिस तरीके से बोर्ड को लात मारा गया वहाँ पर, हालांकि ये खुद जाके कोई बम्बू नहीं गाड़ दिया, निज़ाम चौक वहाँ पे बम्बू नहीं गाड़ दिया, एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद में जाके उस जगह का नाम, एक छोटे से जगह का नाम निज़ाम चौक रखा गया। निज़ाम ने वहाँ पर एक निज़ाम शुगर फैक्ट्री डाला था 15,000 एकड़ में, जिसमें लाखों लोग काम करते थे, एम्प्लॉयड थे उसके अंदर, और सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं, सारे कम्युनिटी के। और निज़ाम के बाद में जब वो लगभग 80 साल बाद अब वो जब वो प्राइवेटाइजेशन के लिए गया निज़ाम शुगर फैक्ट्री, तो अब बंद पड़ा है। हालांकि हमारे केसीआर साहब ने वादा किया है कि उसको ओवरटेक करके, गवर्नमेंट उसको ओवरटेक करके उसको वापस शुरू करेगी। लेकिन कल जो हुआ बोधन में, बहुत शर्मनाक वाक़या हुआ बीजेपी के लोगों के द्वारा, और बोधन के लोग के लिए
कल का दिन बहुत शर्मनाक दिन था। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और बीजेपी इंडिया को सेक्युलर नहीं एंटी सेक्युलर कंट्री बनाना चाहती है। हिंदुत्व बोल के डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश जैसा डिवाइड एंड रूल कर रही थी, उसी तरीके से बीजेपी भी डिवाइड एंड रूल करके अपना राज करना चाहती है। हालांकि बीजेपी जब से आई है पार में, तब से क्राइम रेट्स बढ़े हैं, रेप्स बढ़े हैं, जीडीपी गिरा है, कंट्री का कुछ भला नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ है। हैदराबाद में इलेक्शंस के टाइम पे जब बैलेट बॉक्स जब यूज करने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों बड़े बड़े नेता, नाम तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे कौन तीन बड़े नेता, यहाँ पर आ गए, हैदराबाद में आ गए और हेड मॉन्गरिंग करने लग गए। सर्जिकल स्ट्राइक करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। खैर मेन बात तो ये है, मेन सब्जेक्ट ये है कि कल बोधन में क्या हुआ। बोधन में जो है जिस तरीके का शर्मनाक वाकया हुआ कल एक निज़ाम चौक को लेके, हालांकि रेजोल्यूशन पास हो गया था कि उसका नाम निज़ाम चौक रखा जाएगा। रेजोल्यूशन पास होने के बाद निज़ाम जो है एक सेक्युलर बादशाह था। निज़ाम के बारे में आप खुद सुनिए वीडियो में, निज़ाम किस तरीके का बादशाह था। खैर आपको यही मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ये एक कम्युनल हेट मॉन्गरिंग पार्टी है। ये सिर्फ एक ही तरीके से रूल करना जानती है, डिवाइड एंड रूल। हिंदू को और मुसलमान को लड़ाओ और लोगों को ब्रेन वॉश करती है वाया मीडिया जिस तरीके का अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी है। आज के डेट में तो सब लोगों को समझ में आने लग गया किस तरीके का पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। और अब तो फील्ड पर इन्होंने लोगों को भी उतार दिया। जिस तरीके से दिल्ली जेनोसाइड में पुलिस की यूनिफॉर्म में कच्छाधारी फौज आए हुए थे, ये लोग चाहते हैं कि लोगों को इंस्टिगेट किया जाए। इंस्टिगेट करने के बाद में रायट होने के बाद में इनकी कच्छाधारी फौज आए और पुलिस के ऊपर ब्लेम जाए। इनकी कच्छाधारी फौज जो है पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के राइट करवाती है। तो हम सब लोगों को एक साथ यूनाइट होना पड़ेगा, ये बीजेपी और जो इनकी कच्छाधारी फौज है उसके अगेंस्ट में। अदरवाइज हमारा कंट्री जो है, हमारा देश जो है फिर से गुलाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारा जीडीपी जो है -23.9 हो गया है और देश में कहीं से भी उन्नति नहीं हो रहा है, सिर्फ डाउनफॉल चालू है कंट्री का। और उसमें भी कोरोना वायरस के टाइम पर भी हमारे प्रधानमंत्री खुद मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन लोगों के ऊपर फाइन लगाते हैं कि मास्क पहनो। इनके जो लोग हैं, अब जब मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी अगर ये टाइम पे लोग जो है इंडिया के लोग ईवीएम को हटवा के रहेंगे, ईवीएम अगर हट जाएगा तो फिर बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। तो इनके लोग जगह जगह पर हेट मॉन्गरिंग करके लड़वाना चाह रहे हैं लोगों को, ताकि देश जो है इस चीज़ में उलझ जाए और इनकी काली करतूत और इनका काला कानून पास हो जाए। इनका जो अभी जो किसान वगैरह जो धरने पे बैठे हुए हैं वो मसला दब जाए। एक किसान ने कल आत्महत्या किया, वो किसी नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया उसको, क्योंकि नेशनल मीडिया इनके लिए काम करता है। अगर हमको इस तानाशाही से बचना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा और ऐसे डिक्टेटरशिप वाली सरकार के अगेंस्ट हमको लड़ना होगा, खड़ा होना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। शुक्रिया।